everyone. So today we'll start with the chapter 10th, that is forestry, environment and water source management. Alright, so up till chapter 9 we have done. Okay, so key highlights we'll do after the chapter. Okay, starting with introduction. These are the key facts, I would say, which are very much important for the prelims paper. So Himachal Pradesh is located in both the Trans-Himalayan and Himalayan biogeographic region. The state's abundance of flora and fauna, thanks in large part to the presence of mountain ranges of the Shivaliks, Western Himalayas and Trans-Himalayan areas. Total, if we see, the area is 50,443 square kilometers. These key figures are very important. 15,443 square kilometers, or 27.74% of the states is forested. The area, this much area, right, जो actual forest है present, forest cover भी बोलते हैं कई बार, and 37,948 square kilometer, or around 68.16% of the state's landmass is covered by officially designated forest land. So there are two terms. One is forest land and second is forest cover, which is actual forest at present. So here there can be land which is designated as forest, but there is no plantation or forest on that land, but here we will see the actual plantation or the forest, right? So that's the difference. This accounts for 68.16% of the total geographical area, alright, and this one is 27.74%. So that's the difference. So there is one classification according to Champion and Sate, the taxonomic of the forest of the state, 1968. There are 8 main categories of forest and 37 minor types of forests in the state. Most land is covered by the Himalayan moist temperate forest. This is also very important fact. The major forest अगर हम देखें, so moist temperate type की जो forest है, that is most abundant in the state. Next, so Himachal Pradesh is home to very impressive, diverse and unique fauna, so of which some are very rare. Constitution of India through Article 48A, ये तो हम शायद जानते ही हैं DPSPs के बारे में, 48A directs the government at all levels to endeavor and protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Similarly, the Article 51AG, so that's a fundamental duty on the citizens, right? क्या बोलता है वो of the constitution? Imposes a duty on every citizens to protect and improve the natural environment, including the forests, lakes, rivers, wildlife, and to have a compassionate feeling towards it. All right, there is nothing much. Now we'll see the next paragraph. Himachal Pradesh forest policy aims to ensure proper utilization of the forests and their conservation and extension, right? The aim of the forest department is to enhance the forest cover in the state from present, that is 27.74. So जो forest policy है वो क्या बोलती है कि जो forest cover है जो हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पर, this one we have to increase this to at least 30%, और कब तक? By 2030 if we want to achieve the SDG targets, right? This is what saying as per state of forest report जो बोलती है, so which is 27.74. this is to be increased to up to 30% of the geographical area by 2030 to meet the SDGs. Simple. So we have to categorically indicate the facts. This is one fact, the actual forest cover, the overall forest area, and then the intent of the forest policy to increase this forest area to 30% up to the year of 2030. Now forest cover. So what we talked about, 37,948 square kilometer, that accounts for 68% of the total geographical area of the state is forest cover. ठीक है जी, designated forest है land, right? The effective forest cover is much lower. This area is primarily on account of the fact that very large area, either alpine meadows or
above the tree line. So ये जो 68% हम एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया में काफ़ी सारा एरिया ऐसा होगा जो कि इधर अल्पाइन मीडोज़ हैं, जहाँ पर छोटे छोटे मीडोज़ होते हैं, वहाँ पर कोई एक्चुअल ट्री नहीं है बहुत बड़े, या फिर जो ट्री लाइन है उससे बहुत ऊपर का एरिया है, तो वहाँ पर ट्रीज होते ही नहीं हैं. जब ट्री लाइन एल्टीट्यूड वाइज हम ट्री लाइन से ऊपर चले जाएंगे, सो देयर इज नो ट्री. इफ़ वी गो टू दी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ किन्नौर और लाहौल स्पीति, वहाँ बहुत सारे एरिया ऐसा है जहाँ पर ट्रीज नहीं होते. राइट. सो एन एरिया ऑफ 15,443 जो हम बात करें 27% इज एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया विद डेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम 10% to 70% एंड अबव. सो फॉरेस्ट जो डेंसिटी है उस एरिया में, इट विल वेरी बिटवीन 10% to 70%, एंड बेस्ड अपॉन दिस डेंसिटी the forest would be categorized as very dense forest, dense moderate forest, or whatever it is, right? So we'll see here. So this constituted 3163 square kilometer as very dense forest. ये कौन किसकी बात कर रहा है? जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसमें ये सब डेजिग्नेशन किया गया है. वेरी डेंस फॉरेस्ट हैविंग क्राउन डेंसिटी ऑफ मोर देन 70%. सो दिस ए टेबल, हम ये टेबल याद कर सकते हैं, राइट. सो दिस first column, very dense forests means the crown density, the tree density would be more than 70%, उसको बोलेंगे हम very dense forest. कितना है? 2021 में state of forest report के accordingly बोल रहे हैं. So this much area 3163 square kilometer, this is dense forest. Earlier this was 3113, which means it has increased and is actually increasing from this year. हालांकि उसके पहले ये काफ़ी था, ये कम हुआ था, 11 से लेकर 15 तक काफ़ी था, उसके बाद 17 में जब रिपोर्ट आई थी उसमें तो काफ़ी कम हुआ है, एंड नाउ अगेन इट्स इंक्रीजिंग. सेकेंडली मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, विच मीन्स द क्राउन डेंसिटी, मतलब जो ट्री की डेंसिटी है इट विल वेरी बिटवीन 40 to 70%. ठीक है जी. एंड द एरिया अंडर दिस इज 7100 स्क्वायर किलोमीटर. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट एरिया. जो अगर हम ओवरऑल फॉरेस्ट की बात करें तो जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. अब उसमें क्या होगा, 40 से 70% तक के प्लांट्स होंगे, राइट. एंड दिस ऑल्सो हैज़ डिक्रीज द बिट फ्रॉम 7126 to 7100. हालांकि उसके पहले काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है ये पिछले 2-3-4 सालों में. एंड फाइनली दी ओपन फॉरेस्ट, या फिर ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर कि बहुत कम डेंसिटी है, विच मीन्स 10 to 40%, उनको बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट, राइट. एंड द नंबर इज़ 5180. सो the biggest share is moderately dense forest, and then is open forest, and then finally the very dense forest. ये hierarchy wise भी अरेंज करने को आ सकते हैं, या मैच करने को भी मतलब पेयर मैचिंग में क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में. कैटेगरी वाइज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दिस फिगर कैन बी मेड इन मेन्स. ऑलराइट. सो दिस इंडिकेट मॉडरेट फॉरेस्ट विच अकाउंट्स फॉर 46%, देन योर open forest that is 33%, and then finally very dense forest 20%. So we can arrange this way: 46%, then followed by 33.5%, and then lastly 20.5%, right. We can memorize this. Next, so district wise forest cover in the geographical area. forest cover in geographical area की बात करें तो obviously चूँकि बहुत सारा एरिया जो है लाहौल स्पीति में, जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है इटसेल्फ एरिया है बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट होगी वो ज़्यादा होगी. एंड वी हैव सीन दिस वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, नॉट मच टू बी डिस्कस्ड. डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट ऑन द जोग्राफिकल एरिया. ठीक है जी. सो ये देख सकते हैं 79% वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है मैक्सिमम, एंड देन वी कैन सी हमीरपुर एंड ऊना मिनिमम, राइट. नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ जोरदार है नहीं, बस हम एक बार फिगर देख सकते हैं. फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन बाय लीगल स्टेटस. ठीक है जी. सो बिलासपुर की बात करें, रिजर्व फॉरेस्ट एक है, हालांकि ये शायद नहीं पूछे, लेकिन हम टेबल के एक्सट्रीम एंड्स को याद कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ. अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड लैंड टोटल है 16,000 स्क्वायर किलोमीटर. डिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है 12,000. रिजर्व फॉरेस्ट जो हिमाचल में है दैट इज़ 1883. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, किलोमीटर स्क्वायर की बात हो रही है. ठीक है जी. सो रिजर्व फॉरेस्ट इज 1883, देन डिमार्केटेड दैट इज 12,852, एंड देन अनडिमार्केटेड दैट इज 16,000, और अदर फॉरेस्ट है 7178. टोटल फॉरेस्ट कितना बना? 37948. ऑल राइट. सो वी कैन सी हेयर लाहौल स्पीति with maximum
10,000 के आसपास वहाँ पर है। और जो मोस्टली ये अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट है, यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट बहुत कम है, हम जानते हैं वहाँ पर रिजर्व बहुत कम ही है। कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से। इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सब सेक्टर कॉन्स्टिट्यूटेड 6,053 करोड़, दैट अकाउंट्स फॉर 24% ऑफ द GVA फ्रॉम एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर से बात करें तो 24%, अगर हम टोटल GVA की बात करें दैट इज़ 3.28% हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। सो GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड की बात करें तो वो 3.28 है। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के विद इन बात करें एग्रीकल्चर एंड अलाइड में, सो इट अकाउंट्स फॉर 24.36%। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। GVA एट कॉन्स्टेंट, ये करंट प्राइस बात करें, कॉन्स्टेंट प्राइसेस द फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग ग्रीव फ्रॉम 4,000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 15-16 में टू 5,000 करोड़ इन 21-22, राइट। एंड वी कैन सी दैट the forestry and logging sector is expected to grow by 2.7% this year. So expected growth है 2.7% and at constant price it has increased from 4,000 to 5,000. Simple. We can see here GVA of forestry at current prices जो हमने बात करी 6,000 है करंट प्राइसेस पे एंड 5,000 के आसपास है कांस्टेंट प्राइस पर, राइट। सो दिस इज दिस ईयर, ऑलराइट। और जो ग्रोथ है दैट इज़ 2.7%। लास्ट उसमें ये एक साल में ये -5.2 थी, उसके पहले 13.9 थी, बट वी कैन मेमोराइज दिस नाउ। शेयर ऑफ द फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग इन GVA ऑफ द एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर वी हैव सीन दिस इज 24%, बट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज 2017-18 में इट वॉज 28 और उसके पहले 16-17 में इट वॉज 37 द मैक्सिमम, राइट। सो यहाँ से फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे फॉरेस्ट्री लॉगिंग से जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो घटने लग पड़ी। सो दिस ईयर 2016-17 में टोटल GDP का, ये GSV का 5.37% जो है वो फॉरेस्ट्री लॉगिंग से आया था, उसके बाद ये ग्रेजुअली घटा है, हम याद कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर फॉरेस्ट्री, द प्लान प्रोग्राम्स टेकन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एम्स एट फुलफिलिंग दीज पॉलिसी कमिटमेंट्स, जो भी हमने कमिटमेंट करी उनको फॉर्मुलेट करने के लिए या फुलफिल करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट बना रही है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फॉरेस्ट प्लांटेशन, राइट। फॉरेस्ट प्लांटेशन इज बीइंग कैरिड आउट अंडर वेरियस स्टेट प्लान, डिफरेंट फॉरेस्ट प्लांटेशन जो है वो एक ड्राइव के तौर पर हम चला रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या आप देखेंगे हम, वेरियस स्टेट स्कीम्स जैसे दी कैंपा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसके अंडर एज वेल एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑफ नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम से, तो ये दो मेजर प्रोग्राम हैं जिनके थ्रू एफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम जो चल रहा है। साथ ही साथ नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एज वेल एज अंडर दी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स। सो ये सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू डिफरेंट फंड्स जो हैं जनरेट किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्लांटेशन, राइट। The pasture and grazing lands of the states are being managed under the state schemes development of pasture and grazing lands. One Mahotsav at the state circle division level are also celebrated for educating the masses and creating awareness among the stakeholders regarding forestry, environmental concerns. The new forestry scheme Sanji Van Yojana is also there. See, this is important. For the financial year 22-23 plantation target जो हमारे पास था वो 15,000 हेक्टेयर था, इंक्लूडिंग कैंपा एंड जो बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनके द्वारा फिक्स किया हुआ, जिसमें से हमने 12,131 हेक्टेयर जो है टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर लिया है अप टू दी, बाकी जो है वो हम 31 मार्च 2023 तक अचीव करेंगे। ओके, नेक्स्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट इन द स्टेट आर सब्जेक्ट हाइटिक प्रेशर ड्यू टू द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, चेंजिंग एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं वो एग्रेसिवली फॉलो की जा रही है या फिर एनिमल हस्बेंड्री के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर आ रहा है। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स बजाय जो डेंस फॉरेस्ट के लोग प्रेफर कर रहे हैं कि पास्चर्स टाइप की फील्ड्स जो हैं वो जो उनको ज़्यादा करके जाए, फॉरेस्ट को क्लीन करके वहाँ पर पास्चर्स उस तरह की चीज़ें ज़्यादा कल्टिवेट की जाए ताकि जो एनिमल्स हैं या एनिमल हस्बेंड्री के वो हैं उनको चारा मिल सके, वो सब चीज़ें के लिए। तो धीरे धीरे करके जो फॉरेस्ट एक्चुअल फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे करके डिप्लीट हो रही है, ये वो बोल रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा फॉरेस्ट इज़ एक्सपोज टू पेरिल्स ऑफ फायर, वो हम देखते हैं फायर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हिमाचल में, स्पेशली दी शिवालिक रेंजेस, लोअर रेंजेस में। फॉरेस्ट फायर, इलिसिट फेलिंग,
इंक्रोचमेंट्स एंड अदर फॉरेस्ट ऑफेंसेस, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, यहाँ से हम ये मेंस में भी लिख सकते हैं क्या क्या दिक्कतें हैं फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, राइट. फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इज बीइंग स्ट्रेंथन बाई इक्विपिंग चेक पोस्ट्स एट द सेंसिटिव प्लेसेस विद CCTV कैमरास टू इंश्योर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस. ठीक है जी. सो CCTV से भी कॉम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं उनको, खासकर वो पोस्ट जो थोड़ी सेंसिटिव है, जहाँ पर से कि इस तरह के ट्रेड, इलिसिट ट्रेड जो है ज़्यादा होता है. साथ ही साथ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड इम्प्रूव टेक्निक्स आर ऑल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एंड मेड available to the forest division where the fire is a major destructive element. Communication network for effective management and protection of the forest wealth is very important. Keeping in these factors in view, centrally sponsored schemes of forest fire prevention and management scheme and state scheme, namely forest fire management scheme, are being implemented. So एक नेशनल लेवल की स्कीम है वो भी, साथ ही साथ जो स्टेट लेवल की स्कीम है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पर्पज़ क्या है कि जितने फैक्टर हमने ऊपर बात करी, चाहे वो इलिसिट फेलिंग के लिए हो या फॉरेस्ट फायर के लिए हो, जो भी फॉरेस्ट को थ्रेट हैं उनको, उनसे बचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी, टेक्नोलॉजी भी, वो सब चीज़ें जो हैं हम अडॉप्ट करें, उसके लिए स्कीम काम कर रही हैं. नेक्स्ट है जी एक्सपेरिमेंटल सिल्वीकल्चरल फेलिंग और सब्सिडी सिल्वीकल्चर. सिल्वीकल्चर मतलब क्या है कि कंट्रोल तरीके से, टेक्निकली मतलब उस तरीके से जो है प्लांट्स को कट करना, और राइट. सो द वैल्यू ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट वेल्थ, अगर हम वैल्यू की बात करें, इज़ अराउंड 1,50,000 करोड़. ये वेल्थ है, लेकिन हम जानते हैं कि जो ग्रीन फेलिंग है दैट इज़ स्टॉप्ड वे बैक 1980s में. हमने ग्रीन फेलिंग जो है बंद कर दी थी. हम जो ग्रीन फेलिंग नहीं हो सकती स्टेट में. सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया हैज़ अलाउड द स्टेट फॉर सिल्वीकल्चरल ग्रीन फेलिंग. सो उन कुछ एक पर्टिकुलर पॉकेट्स में जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा है कि सिल्वीकल्चर बेस्ड जो ग्रीन फेलिंग की जा सकती है फॉर एक्सपेरिमेंटल बेसिस. फिलहाल पर कहाँ है जी ये, और 3 स्पीसीज़ की, दिस इज इंपॉर्टेंट, 3 प्लेसेस एंड 3 स्पीसीज़, खैर, चील एंड साल. ये 3 जो प्लांट्स हैं जिनको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, और 3 डिफरेंट रेंज में, नूरपुर रेंज इन कांगड़ा फॉरेस्ट डिवीजन, भराड़ी रेंज इन बिलासपुर, एंड देन पॉन्टा रेंज इन पॉन्टा डिवीजन सिरमौर. द फेलिंग ऑफ द ट्रीज was carried out during the 1819, during the 22-23. Maintenance of the area is being carried out as per the recommendation of Supreme Court Monitoring Committee. ठीक है जी. देखिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए सिल्वीकल्चर ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है. उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट है उसको मेंटेन बहुत अच्छे से किया जा सकता है. अब चूँकि अगर हम साइंटिफिक चीज़ों की यूसेज ना करें या सिल्वीकल्चर ऑपरेशन का यूज़ ना करें, तो जो फॉरेस्ट डेवलप होती हैं वो उतनी कंड्यूसिव नहीं होंगी, जो हमें चाहिए उस तरह की नहीं बनेंगी. तो क्यों ना हम जो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं खासकर फॉरेस्ट्री की फील्ड में, उनको यूज़ करके सिल्वीकल्चर के ऑपरेशन से हम बेटर फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, और इसी के लिए स्कीम है. न्यू स्कीम्स टू सेंसिटाइज द लोकल कम्युनिटीज, स्टूडेंट्स एंड जनरल पब्लिक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, देयर रोल इन द एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल हार्वेस्ट, हैंडलिंग एंड वैल्यू एडिशन. उसके लिए कुछ एक स्कीम्स हैं. डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, HS में भी और एक बार अलाइड में भी. क्या कहा गया था? राइट एनी 4 स्कीम्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है जी. डायरेक्टली नाम पूछ लेते स्कीम्स के. पहली है जी नंबर 1 सामुदायिक वन संवर्धन योजना. टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट. और कैसे करेंगे? थ्रू प्लांटेशन, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट, increasing the forest covers and etc. So the scheme is being implemented through existing joint forest management committees और village forest development society जो हैं वो बनाई गई होंगी. उसके थ्रू हम communities को साथ में इन्वॉल्व करेंगे for the awareness as well as for the maintenance of the forest. During the year plantation and soil conservation activities are being carried out in all selected sites, जहाँ पर भी ये वो है, और उसके लिए छोटे छोटे माइक्रो प्लान जो हैं वो बनाए गए हैं. एन आउटले ऑफ 30 करोड़ के आसपास जो है हैज़ बीन केप्ट फॉर द स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23. नेक्स्ट स्कीम है, सो पहली होगी सामुदायिक वन संवर्धन योजना. सेकंड वन समृद्धि जन समृद्धि. सो ऑब्वियसली समृद्धि का मतलब क्या है कि वेलबींग को प्रमोट करने के लिए होगी. द स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन दी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स रिसोर्सेज, और उनका बेस जो है स्टेट थ्रू द एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, empower the local rural communities to collect, conserve and selling of non-timber forest products to increase their income. So जो local communities है, जो forest dependent या forest dwelling communities type में हैं, जो directly या indirectly dependent है forest के ऊपर, वो non-timber forest produce को
सेल कर सकते हैं। नॉन टिम्बर मतलब जो प्लांट का मेजर टिम्बर होता है वो नहीं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए, लेकिन छोटे मोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फ्रूट्स हो गए या बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, फ्लावर्स हैं, राइट, वो सब चीज़ें जो एनुअल बेसिस पर होती हैं उनको बोलते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सो प्लांट से केवल टिम्बर ही नहीं निकलती, और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। सो उस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं एक्चुअली, चाहे वो कई बार पेड़ों की छालें हों, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि प्लांट बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एक्सेप्ट टिम्बर के, बहुत सारे और भी, उन सबको सेल करके जो लोकल कम्युनिटीज है जो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर, वो उनको साथ ही साथ वो प्लांट्स को कंजर्व भी करेंगे और उन प्लांट्स के जो डेरिवेटिव्स या छोटे मोटे प्रोडक्ट होंगे उनको सेल करके अपनी इनकम को भी सप्लीमेंट कर सकते हैं। वन समृद्धि जन समृद्धि। सो इन अ वे क्या हुआ कि जो लोकल कम्युनिटी है उसको भी फायदा हुआ इनकम वाइज, साथ ही साथ जब उन्होंने ढंग से प्लांट्स को मेंटेन किया तो जो फॉरेस्ट है वो भी ढंग से ग्रो उसकी हुई। थर्ड स्कीम, एक बूटा बेटी के नाम। हेयर टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव, एक तो जेंडर सेंसिटाइजेशन और सेकेंडली फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए या प्लांटेशन के लिए ये जो स्कीम है। क्या किया जाएगा, वेन एवर देयर इज अ गर्ल चाइल्ड एनीवेयर इन द स्टेट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल गिफ्ट 5 सैपलिंग्स आइडेंटिफाइड स्पीसीज की, जो भी वहाँ एरिया स्पेसिफिक स्पीसीज होंगी उनको, अलॉन्ग विद द प्लांटिंग किट टू ग्रो द रोबस्ट एंड हेल्दी टॉल प्लांट्स। ठीक है, ये किया जाएगा। पर्पज़ क्या है, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ डॉटर्स एंड द नीड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, राइट, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है। और कितना, 40 करोड़ के आसपास जो है हैज़ बिन केप्ट अंडर द स्कीम। विद्यार्थी वन मित्र योजना, द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन एसोसिएशन विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट in collaboration with Himachal Pradesh State Legal Service Authority. The budget provision of 38 lakh has been kept under the scheme for the financial year 22-23. 65 new schools have been selected for carrying out the plantation by the students during the, अब क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को जो है वो कहा जाएगा, मतलब स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाएगा टू, क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को जो इनकरेज किया जाएगा टू गेट इन्वॉल्व इन दी प्लांटेशन, और स्कूल के प्रेमाइसिस में ही या आसपास के एरियाज़ में प्लांटेशन करी जाएगी और उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट एज वेल एज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल कलेक्टिवली वर्क। नेक्स्ट है जी अमृत सरोवर। अब सरोवर मतलब कि कोई वाटर बॉडी जो है बनाने की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 अंडर द स्कीम 154 साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमृत सरोवर्स, अप टिल डेट 147 जो है कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं। नेक्स्ट, जल भंडारण, 82 places have been identified for the construction of dams फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, राइट। ये तो स्कीम्स होगी जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। नेक्स्ट, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट KFW असिस्टेड। अभी क्या है, इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग के लिए प्रोजेक्ट है बाय द बैंक ऑफ KFW ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मन बैंक है, ये फाइनेंस कर रहा है। Assistance of KFW Credit Institute Construction is being implemented in 2 districts, that is कांगड़ा एंड चंबा। ये डायरेक्टली पूछा गया था क्वेश्चन 2-3 साल पहले प्रीलिम्स में, राइट। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। ठीक है जी, द आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट इज 308 crores। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज द रिहेबिलिटेशन, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ सेलेक्टेड फॉरेस्ट, राइट, of Himachal Pradesh to increase and secure the resilience of the forest ecosystem against the climate change। So इस तरह की फॉरेस्ट को डेवलप करें जो कि क्लाइमेट से रेजिलियंट हो, चेंजिंग क्लाइमेट का उस पर मिनिमम इफेक्ट जो है पड़ सके। दिस विल कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथनिंग द अडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू क्लाइमेट चेंज, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्टेबलाइजेशन ऑफ द कैचमेंट एरियाज, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज बेस एंड इन टाइम रिजल्ट फॉर द बेटर लाइवलीहुड्स। सो आसपास की जो कम्युनिटी है उनके लाइवलीहुड के लिए भी एफर्ट्स किए जाएंगे। प्रोविजन ऑफ 55 crore हैव बीन केप्ट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, आउट ऑफ विच 25 crore हैज़ बीन स्पेंट। नेक्स्ट, ये एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है। नंबर 1 हमने देख लिया क्लाइमेट प्रूफिंग का। नंबर 2 हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट, राइट। सो बाई दी जाइका या जिका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इज फंडिंग 10 year बेस्ड 800 crore प्रोजेक्ट है। अब क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, विद प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर एट शिमला एंड रीजनल ऑफिस एट कुल्लू एंड रामपुर बुशहर। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट आर टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड माउंटेन इकोसिस्टम्स, improve livelihood of the local या forest या pasture dependent communities हैं उनका livelihood by increasing the forest cover, density
and productive potential using the scientific and modern forest management practices. So नई प्रैक्टिसेस, नया इनोवेशन जो है यूज़ की जाएगी ताकि उसका बेनिफिट फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी, साथ ही साथ जो फॉरेस्ट बेस्ड या फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं उनका लाइवलीहुड प्रमोट करने के लिए भी यूज़ किया जा सके. Right, financial year 22-23, the government has provided 70 crore under this project. Entire budget will be utilized for the project related activities till March 31st. Next, wildlife human interface. So this is also very important. Man animal conflict. डायरेक्ट टॉपिक है, मेंस में क्वेश्चन आता है सीधा ही 4 नंबर का. मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या कारण है? सी 2 ways. What are the causes, consequence and what can be done, right? So the state has always coexisted with the biodiversity. Over the years, people have used over 600 local plants for the healthcare, food, fruit, fiber, fodder, fuel, gums, oil, resins or more. These plants contribute substantially to the rural livelihoods. So the state government, these plants contribute substantially to the rural livelihoods. नेक्स्ट देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट इन एप्रिसिएशन ऑफ दीज इंटीमेट रूरल लाइवलीहुड लिंकेजेस हैज़ अलाउड द लोकल कम्युनिटीज टू यूज दीज फ्रॉम ऑल द फॉरेस्ट एक्सेप्ट दोज. सो उन सब फॉरेस्ट को जो है एक्सप्लॉयट कर सकते हैं काफ़ी हद तक, सिर्फ उन छोड़ के किनको, रिजर्व अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 या फिर दोज अंडर द नेशनल पार्क्स, जो कि नेशनल पार्क के अंडर एरिया आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर. सो वो एरियाज़ जो इधर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड हैं या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर है, उनको छोड़कर बाकी एरियाज़ है वहाँ पर जो भी प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए गवर्नमेंट इनकरेज करती है. सिंस 1984 पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स हैज़ बीन इंक्रीज ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ टोटल बैन ऑन हंटिंग. सो चूँकि 1984 के बाद हंटिंग के ऊपर कंप्लीट बैन हो गया, उसकी वजह से जो नंबर ऑफ द पॉपुलेशन है खासकर ये वाइल्ड एनिमल्स की वो बढ़ गई है काफ़ी, और उसकी वजह से काफ़ी हम देखते हैं कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. एक्सटेंसिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर कपल्ड विद द इंक्रीज्ड ह्यूमन इंटरफेरेंस इन हेथरो अनडिस्टर्ब्ड एरियाज हैज़ लेड टू द ग्रेटर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. तो पहले तो काफ़ी सारे एरियाज ऐसे थे जो पहले फॉरेस्ट ही थे, बट चूँकि अब वहाँ पर एग्रीकल्चर ऑपरेशन हमने स्टार्ट करे हैं या लोगों ने घर बना लिए हैं, उसकी वजह से जो एनिमल और मैन का कॉन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. सो वी कैन सी whereas wild boar, black bear, monkeys are reported to sometimes cause the damage to the standing crops. Instances of lifting of domestic animals by the leopards are also reported. Stray cases of injuries to and losses to the human life by leopard and black bear are also reported from some places. Right? और उसके लिए अब क्या करें? The state government is the process of formulating a long-term policy to deal effectively with such situation. बाई इंक्रीजिंग दी ह्यूमन वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, उसको जो इंक्रीजिंग मतलब इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको कैसे डील किया जाए. सो द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न अबाउट दीज कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सटेंडेड द मॉनेटरी कंपनसेशन, टेम्पररी रिलीफ के लिए मॉनेटरी कंपनसेशन का भी प्रोविजन है इन केस ऑफ लॉस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड इंजरी टू द और लॉस टू द ह्यूमन लाइफ बाय द वाइल्ड एनिमल. सेकेंडली, इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स सिंस बोथ आर एसेंशियल फॉर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. तो आउटराइटली उसको सेपरेट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक कोएग्जिस्टेंस के लिए एक एटमॉस्फेयर बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जा सके, जहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स को मिनिमाइज कर सके. राइट, नेक्स्ट है जी, तो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड एनहेंसमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट आर ऑल्सो ऑल पार्ट ऑफ द स्कीम with the ultimate goal of saving the endangered bird species and animal species. So उसके लिए छोटी मोटी स्कीम्स हैं. एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके लिए है. डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी was set up 13th of April 2007 with the broad objectives of impose the effectiveness in environmental management, protect vulnerable ecosystems and enhance sustainability of the development. एनवायरमेंट के लिए कुछ एक और इनिशिएटिव हम देखते हैं. सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव, स्टेट टुडे फेसेस अ की एनवायरमेंटल चैलेंज स्पेशली बिकॉज ऑफ द नेक्सस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. सो हम ये देख रहे हैं जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, वैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के इंस्टेंसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गए हैं. सो दीज चैलेंजेस पर्टेन टू द स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज सच एज एयर, लैंड, वाटर, फ्लोरा एंड फौना. Responding to these challenges, the government of Himachal Pradesh is devising a suitable policies
for its key sectors such as hydropower, tourism, industry, as well as the rural development and environmental management. तो हम वो पॉलिसीज देखते हैं जब हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे. पहला इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द यूज एंड लिटरिंग ऑफ प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995. A fine of 13 lakh has been collected from the 1224 violators in the financial year of 22-23. Under this act, polythene bags, plastic and thermocol cutlery, single-use plastic spoons, bowls, कटोरीज, स्टीयरिंग स्टिक्स, फॉक्स, ये सब जो है कम्प्लीटली बैंड हैं इन द स्टेट अंडर बाई बैक पॉलिसी. अब जो प्लास्टिक ऑलरेडी बन चुकी है उसको अब्जॉर्व करने के लिए गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेकर आई थी लास्ट ईयर 2-3 साल पहले से. उसको बोलते हैं बाई बैक पॉलिसी फॉर नॉन साइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट. दिस ईयर 42 लाख हैज़ बीन पेड फॉर ऑन द परचेज ऑफ 29,965 kg ऑफ प्लास्टिक्स. कैसे? 75 रुपीज़ पर kg जो रैग पिकर्स होंगे या प्लास्टिक जो कलेक्ट करते हैं उनको दिस मच अमाउंट फॉर पर kg बेसिस पर गवर्नमेंट देती है एंड कलेक्ट दी प्लास्टिक. अब उसका करेगी क्या गवर्नमेंट? द प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करके मल्टीपल यूसेज जो गवर्नमेंट करने वाली है, स्पेशली फॉर दी रोड कंस्ट्रक्शन. यहाँ पर मेजरली इसको यूज़ किया जाएगा, रोड कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ करेंगे, विच विल इन्हांस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द रोड. उसकी वजह से 2-fold बेनिफिट है. एनवायरनमेंट में से जो प्लास्टिक है वो भी एलिमिनेट हो जाएगी, साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन है वो भी थोड़ी इंप्रूव होगी. द स्टेट लेवल स्पेशल टास्क फोर्स हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिएशन ऑफ मॉडल इको विलेज. अब इसमें क्या है? एनवायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी इज जो डिपार्टमेंट है जैसे दैट्स इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल इको विलेज स्कीम इन द स्टेट. द स्कीम इज फोकसिंग टुवर्ड्स द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग अ लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल एंड टू रिड्यूस द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स. सो इस तरह के विलेज हम बनाएंगे जिसमें कि जो लाइफस्टाइल है वहाँ पर वहाँ की जो एम्यूनिटीज़ होंगी, यहाँ की जो लोगों का तरीका होगा वो मिनिमम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्रिएट करेगा या फिर लो कार्बन एमिशन जो है उस तरह का लाइफस्टाइल जो क्रिएट किया जाएगा बाई एज मच ऑफ 50% ऑफ द बेस असेसमेंट फ्रॉम द लॉन्च ऑफ द स्कीम. ठीक है जी. 19 विलेजेस हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द स्कीम्स विद टोटल बजट ऑफ 2.44 करोड़. R&D प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में देख सकते हैं हम. शेड्यूल कास्ट फंड में या डेवलपमेंट प्लान जो है उसमें भी कुछ एक चीज़ें स्ट्रेंथन करने के लिए करी गई हैं. जैसे देखिए, बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर द स्ट्रेंथन कैपेसिटी मार्जिनल SC फैमिलीज फार्मर्स मीटिंग देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर इरीगेशन, वाटर लिफ्टिंग, हीटिंग, स्पेस लाइटिंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स, रेस्टोरेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर मिल्स, घाट जिनको हम बोलते थे उनको, एंड रिवाइवल ऑफ द नेचुरल स्प्रिंग्स मार्जिनल SC कम्युनिटीज़ के विसिनिटी में जो इस तरह के होंगे. राइट. स्टेट लेवल एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, देख सकते हैं. दिस स्टेट नॉलेज सेंटर, स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सी अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, NAMC ऐसे लिख सकते हैं. आई होप आप एक जानते होंगे, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज. ओवरऑल एक प्लान है गवर्नमेंट का, ठीक है जी, टू मीट दी UNFCCC के जो टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान है. उसके अंडर 8 डिफरेंट स्कीम्स हैं, टोटल 8 स्कीम्स हैं. उनमें से 8 में से ये भी एक स्कीम है जिसकी हम बात करें, नेशनल मिशन ऑन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम. राइट. और उसी के अंडर ये डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश हैज़ एस्टैब्लिश द स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज. पर्पज़ क्या है? तो क्लाइमेट चेंज जिस तरह हो रहा है उसको डील करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना. राइट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया provided with 1.12 crore of state KCC operations. The department is creating cohesive database on geological, hydrological, ecological, social, cultural and traditional ecosystem preservation. ठीक है जी. उस बेसिस पर करेंगे और वो सारा एक्सपर्ट लेवल का जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस सेल में स्टेट नॉलेज सेल जो है वहाँ पर क्रिएट किया जाएगा. नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा हेल्प टू बिल्ड द क्लाइमेट चेंज पॉलिसी नॉलेज बेस. अब वो क्या करेंगे? जितना भी डेटा या नॉलेज जनरेट की जाएगी उसको यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन. राइट. द क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड adaptation plan for the Kinnaur and Lahaul Spiti districts have been prepared and the plans for Shimla, Kullu, Mandi are being prepared. So यहीं पर सेल में कुल्लू और लाहौल स्पीति और किन्नौर के लिए प्लान जो है ऑलरेडी बन चुके हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं. क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड एंड फाइनेंस इन द रूरल इंडिया, कैफरी. दिस प्रोजेक्ट ये देख सकते हैं हम, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट है
बिटवीन द जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन GIZ जो है इसको फाइनेंस कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के बीच में। अब क्या है ये, अंडर दिस प्रोजेक्ट कैपेसिटी डेवलपमेंट पैकेज हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड महिला मंडल्स फॉर द वेरियस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। सो जो ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले जो मैन पावर है, चाहे वो पंचायती राज के हों या महिला मंडल्स हों, उनको कैपेसिटी, उनको ट्रेनिंग जो है दी जाएगी इसके अंडर। नेक्स्ट, नॉलेज नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन टू इम्प्लीमेंट द SDG 13 विजन 2030 का टारगेट ये बनाया गया है। सो द स्टेट विद द ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग टुगेदर पॉलिसी मेकर्स, अडेप्टेशन रिसर्चर्स, प्राइवेट एंड अदर एंड नॉन गवर्नमेंट बेस्ड जो सेक्टर हैं एट द स्टेट एंड रीजनल लेवल्स टू सपोर्ट ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन इन दी स्टेट मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज, उसके लिए। ठीक है जी। नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन फंड, अडेप्टेशन फंड फॉर द क्लाइमेट चेंज जिसे हमने बात करी थी, NFCC, नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज को देख सकते हैं। NFCC प्रोजेक्ट इन ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ 3 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। द फाइनेंशियल आउटले ऑफ 20 करोड़ हैज़ बीन कंप्लीटेड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम was to reduce the climate related vulnerabilities and improve the adaptive capacity of the rural and small marginal farmers including rural women for introducing packaging of the climate smart farming technologies। so नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की जाएगी, उसकी वजह से जो ड्रॉट, खासकर ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर इस तरह के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यूज़ किया जा सके ताकि क्लाइमेट से फाइट की जा सके आने वाले टाइम में। Department has successfully completed the training program under the National Adaptation Fund on Climate Change in drought-prone areas of 3 developmental blocks of the district सिरमौर। बस हमें इतना याद रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। नेक्स्ट है जी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 की। ठीक है जी। द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रिवाइज्ड एंड पब्लिश द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 कवरिंग द वेरियस सेक्टर्स विच फिजियोग्राफी है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी, लैंड यूज, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, माइनिंग, टूरिज्म, कल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सबको उसको इंक्लूड किया गया है। अब क्या बोलता है ये, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट इज ब्रॉट अंडर द स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्टेट द इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल PSIR, प्रेशर, स्टेट एंड इम्पैक्ट और रिस्पॉन्स मॉडल, उसके बेसिस पर बनाई जाएगी। द रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, दैट इज ऑन 5 जून। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 4 मार्कर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। व्हाट इज हिमकॉस्टे? सो हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, राइट। सो क्या है ये? सो दिस इज अ नोडल एजेंसी फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस एट द स्टेट लेवल। सो हिमकॉस्टे स्टेट लेवल पे काम करने वाली, खासकर एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मेन एजेंसी है। अब उसमें क्या इनिशिएटिव्स हैं या मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं हिमकॉस्टे के? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी जो है 2022 की, उसके बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हैं। हिमकॉस्टे हैज़ फॉर्मुलेटेड दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी फॉर हिमाचल प्रदेश एंड नोटिफाइड द पॉलिसी विद द विजन ऑफ स्ट्रेंथन एंड प्रमोट साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द इनोवेशंस। ऑब्जेक्टिव क्या है उसके? टू स्ट्रेंथन द R&D इंस्टीट्यूशंस, इनोवेशन सेंटर्स, आइडेंटिफाई प्रायोरिटी R&D एरियाज फॉस्टरिंग के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम फॉर द इनोवेशन। बेसिक 2-3 पॉइंट हम ऑब्जेक्टिव के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। पॉपुलराइजिंग द साइंस एंड डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर अमंगस दी डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रमोशन फॉर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड टू लिवरेज द TKS, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, उसको लिवरेज करना, एंड स्पेशली फॉर वोकल फॉर लोकल, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। ये सब मेन ऑब्जेक्टिव हैं किसके? द टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन पॉलिसी जो है 2022 की, राइट। ये हम देख सकते हैं STA पॉलिसी के मेजर स्टेक होल्डर्स क्या क्या हैं, ये हम डायग्राम बना भी सकते हैं। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनपुट्स एज्यूम ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन द हिली स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश गिवन द ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स which act as a challenge for its development. The basis of any planning for sustainable development has to be centered on human relationship with the nature, sense of justice and equity with the permissibility of Himalayan specifications. बेसिक थ्योरी है, पढ़ सकते हैं इसको, उसमें कुछ बहुत जोरदार है नहीं। इन हिमाचल हिमकॉस्टे हैज़ मैप्ड द एसेंटी नीड्स ऑफ द स्टेट्स, मैपिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी नीड्स ऑफ द स्टेट्स इज बीइंग कैरिड आउट बाय द फोकसिंग फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या उसमें कर रहे हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैपिंग की जा रही है। टू आइडेंटिफाई द कोर प्रॉब्लम्स
एरिया स्पेसिफिकली कोर प्रॉब्लम क्या है किसी एरिया की, इश्यूज पॉसिबल सॉल्यूशंस थ्रू सेकेंडरी सोर्स ऑफ स्टेट, इंटरवेंशन। नेक्स्ट है जी मैपिंग ऑफ आइडेंटिफाइड इश्यूज एंड रेलिवेंट सेक्टर एरियाज। थर्डली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दीज फाइंडिंग्स, जो भी वहाँ से डेरिवेटिव निकले उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ हो। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन इन हिमाचल प्रदेश। ये भी क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस में है, ये भी डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन हिमाचल प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश में क्लाइमेट चेंज का क्या मेजरली इम्पैक्ट है। राइट, द स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज under the aegis of HIMCOSTE has been involved in carrying the studies to assess the impact of climate change and its various facets on the cryosphere. See, cryo मतलब word cryo means extremely low temperature. So cryosphere मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर स्नो है या इस तरह की चीज़ें हैं, ग्लेशियर्स हैं, परमाफ्रॉस्ट है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड हजार्ड्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, इन सब सेक्टर्स में भी क्रायोस्फेरिक स्टडीज़, स्नो ग्लेशियर्स और ग्लेशियर लेक्स हैं उनके बारे में। मैपिंग ऑफ द सीजनल स्नो कवर इन हिमाचल प्रदेश, रेगुलर बेसिस पर उसकी मैपिंग की जाए सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू। मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द ग्लेशियर लेक्स, मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द ग्लेशियर्स ऑफ ऑल बेसिन्स। उसमें हम देखते हैं कि अगर हम देखें चिनाब बेसिन जो है, इट शोज़ द रिडक्शन इन इट्स एरिया 3.51%। चिनाब का जो ग्लेशियर है उसके रिडक्शन 3.51% से हुई है। और जो नेक्स्ट है, अगर ग्लेशियर विद डेब्री देखा जाए लाइकवाइज इन ब्यास बेसिन में अगर देखें हम तो इट इज़ 5.15% जो ग्लेशियल रिडक्शन है। सो 3.1% इन चिनाब, 5.15 in Beas, and then we see the Ravi basins with the deglaciation in order of 3.1221%, right? And similarly Baspa river basin with the 4.18, and similarly the other Spiti basin है that is also with the 2.7. So we have seen that Beas जो river basin है या Beas के जो glaciers हैं those are melting और deglaciation बहुत fast rate पे हो रहा है, that is 5.15%. Disaster management. So regular toning of the Parechu lake is being done, which is formed in the Tibetan Himalayan regions. 2004 के आसपास जो है वो एक लेक बन गई थी ड्यू टू दी लैंडस्लाइड या उस तरह का एक प्रॉपर लेक बन गई है वहाँ पर. सो उसका टाइम टू टाइम उसकी टोनिंग करते रहते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट इन केस ऑफ बस्ट हो तो उतना इम्पैक्ट नीचे तक ना आए. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट वाइज मल्टी हजार्ड मैप्स आर बीइंग जनरेटेड यूजिंग दी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा of all the districts of Himachal Pradesh. This is also very important for the disaster management question. Other achievements, ये सब किसकी बात है और ये कौन को सुपरवाइज कर रहा है? हिमकॉस्टे की बात हो रही है. हिमकॉस्टे हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए सेंटर फॉर साइंस एंड लर्निंग एंड क्रिएटिविटी एट विलेज भोग शोगी, अवेयरनेस एंड पॉपुलराइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन ऑफ रिलेटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो ये यहाँ पर एक जनरेट किया है विलेज लेवल पर. A planetarium is being established in village Bhog, Shogi, Shimla for which a memorandum of understanding has been National Center of Science Museum Kolkata and Himachal Pradesh Council of Technology and Environment हिमकॉस्टे में एक आपस में MOU साइन करा है. इसी में शोगी में जो विलेज डेवलपमेंट हो रही है. हिमकॉस्टे इज ऑर्गेनाइजिंग चिल्ड्रन साइंस कांग्रेसेस. ठीक है जी. सो स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 17 उनके लिए एट सिंस 1993 और सब डिवीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर ये एग्जीक्यूट किए हैं. और भी क्विजेज हो गए, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स है, ये सब बेसिकली अवेयरनेस जनरेशन जो है उसके लिए ये डिफरेंट एफर्ट जो है हिमकॉस्टे लेती है टाइम टू टाइम. हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ये भी कंस्टिट्यूट किया गया अंडर हिमकॉस्टे ओनली. ठीक है जी. बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट एज पर द प्रोविजन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वो काम करता है. ट्रेनिंग टू द प्रोग्रेसिव फार्मर्स वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन दी कल्टिवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स फॉर प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स. ऑप्शन द फार्मर स्टेट. 3 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स. कहाँ ये इंपॉर्टेंट ये देख सकते हैं. सुराल भटोरी ब्लॉक पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा, देन हुडन भटोरी, दिस 2 इन डिस्ट्रिक्ट पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा पांगी, एंड नैनगहर ग्राम पंचायत मूरिंग सब तहसील उदयपुर लाहौल स्पीति में. ठीक है जी. ये 3 बेसिकली वो हैं जिसके अंडर जो हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के अंडर जहाँ पर काम चल रहा है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 हिमकॉस्टे हैज़ फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर GI इंडिकेशंस. देखिए GI टैग्स के ऊपर क्वेश्चन वेरी फ्रीक्वेंट आता है मेंस में. कई बार पूछ लेते हैं कि कौन कौन से ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं या फिर कई बार कि कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कर रखा है अप्लाई या फिर जो अंडर प्रोसेस जिनके लिए है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ GI फॉर दी सिरमौरी लोहिया, हिमाचली कैप,
Seppuvadi with the registrar of GI Chennai. Application for Kinnauri jewelry, Himachali Dham, Kinnauri apple, Thachi metal craft, Chamba Chuk, Karsog Kul and red rice are also in the final stage for compilation. So GI tag के लिए जो अप्रूवल्स होते हैं या फिर जो अप्रोच किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल जो कि चेन्नई में है, वो किसके थ्रू होता है? हिमकॉस्टे के थ्रू. हिमकॉस्टे इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डेवलपमेंट और जो भी प्रोसेस होगा उसका फॉर कैटेगराइजिंग एनी प्रोडक्ट एज ए GI टैग और मतलब वो GI टैग को अप्रूव कराने में मेजर रोल प्ले करता है हिमकॉस्टे. हिमकॉस्टे प्रोवाइडेड funds to support Himachal Pradesh specific research and development projects for strengthening research. हिमकॉस्टे has established the 3100 eco clubs in the state और उसमें से schools और colleges को involve किया गया है. eco clubs established, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर. देखिए इको क्लब्स का मतलब क्या है कि एक कलेक्टिव ग्रुपिंग्स बनाएंगे स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, और छोटे मोटे एसेट्स जो हैं वो इकोलॉजिकल एसेट जो हैं वो जनरेट करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हर्बल गार्डन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो इको क्लब्स और स्कूल कॉलेज लेवल पर एग्जीक्यूट की जाती हैं. हिमकॉस्टे हैज़ आइडेंटिफाइड 10 schools फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स टू प्रोपोगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन द स्कूल्स. नेक्स्ट है जी जल जीवन मिशन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जल जीवन मिशन मेजरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और वो क्या पर्पज़ है? फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करने हैं FHTC सभी हाउस होल्ड्स को. कब तक? बाई द ईयर 2024. सो द स्कीम इंटेंड टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस टू ऑल बाई द ईयर 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. सो द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ on this program nationwide is 3.5 lakh crore. The program focuses on the household ability to get service or suitable amount 55 लीटर पर पर्सन पर डे कैपेसिटी जो है इतना कर पानी हाउस होल्ड लेवल पर मिलना चाहिए, ये पर्पज़ है. यहाँ पर से डेटा आप पूछ सकते हैं. 16.64 लाख होम्स आउट ऑफ 17 लाख, टोटल जो 17.0 लाख होम्स हैं हिमाचल में, उनमें से 60.64 लाख तक ये फंक्शनल टैप जो है पहुँचा चुके हैं हम हाउस होल्ड लेवल पर अप टू दिसंबर 2022. compared to the national average of 56%, this is around 97.73%. So this much households are with working functional tap, household tap connection उनके पास. बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे सपोजिटली गोवा हो गया, तेलंगाना है, देन आई थिंक बिहार ऑल्सो. दी स्टेट्स हैज़ डन ट्रेमेंडली वेल, अराउंड 100% के आसपास वो पहुँच चुके हैं FHTC प्लांटेशन मतलब फंक्शनल हाउस होल्ड टैप लगाने के लिए. उसमें देखा जाए तो हिमाचल थोड़ा सा पीछे, लेकिन फिर भी देखा जाए टॉपोग्राफिकली देखें तो उस हिसाब से 97% इज़ ऑल्सो वेरी गुड. इन द फंक्शनली असेसमेंट कंडक्टेड बाय थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस एजेंसीज चोजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, द स्टेट रिसीव्ड फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ पोर्टेबिलिटी अमंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दैट प्रोवाइड मोर देन 60% ऑफ देयर हाउस होल्ड विद टैप वाटर. ऑलराइट, सो अर्बन वाटर स्कीम्स, अर्बन वाटर सप्लाई के लिए हैं, ये हम देख सकते हैं. उसमें 61 टाउन्स हैं, उसमें कुछ बहुत ज़ोरदार इसमें है नहीं. यहाँ से पूछ सकते हैं. अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ अप्रूव्ड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ 150 करोड़ अपग्रेडिंग दी 13 टाउन्स जो हैं उनका वाटर सप्लाई के लिए. 13 टाउन्स मंडी ये नाम हम पढ़ सकते हैं. ठीक है जी. सिमिलरली दी सीवेज स्कीम्स हैं 61 जो अर्बन टाउन्स हैं उनमें डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं. उसमें से जल शक्ति विभाग हैज़ प्रोवाइडेड सीवरेज फैसिलिटी टू 35 टाउन्स इन 35 टाउन्स ऑफ विच 14 आर फुली फिनिश्ड सीवरेज प्रोजेक्ट्स एंड 21 आर पार्टली कंप्लीटेड. राइट, अब एक नया कॉन्सेप्ट है कमांड एरिया डेवलपमेंट. कमांड एरिया का मतलब क्या है कि ओवरऑल एरिया, सपोजली इरीगेशन बेनिफिट्स एक पर्टिकुलर एरिया तक जाएंगे, उसके बाद वो उस फुल एरिया को डेवलप करना और हर एक लास्ट फील्ड तक, लास्ट जो आपका फार्म है वहाँ तक जो है इरीगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसको बोलते हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट. राइट, सो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल हैज़ एलोकेटेड 75 करोड़ फॉर द हिमाचल प्रदेश कमांड एरिया डेवलपमेंट activities in minor irrigation schemes to bridge the gap between potential created and utilized and remainder major. ठीक है जी. सो ये हो गया इरिगेशन के लिए कुछ एक स्कीम्स के नाम हम पढ़ सकते हैं. सो अगर हम टोटल एरिया देखें, टोटल लैंड जो हिमाचल प्रदेश का है दैट इज़ 50 इतना है, आप जानते ही हैं. ठीक, इतना है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर और हेक्टेयर में देखें तो इतना.
राइट। सो उनमें से केवल 5.83 ये इतना हेक्टेयर ही जो है वो इरिगेशन पोटेंशियल उसका है, और उसमें से भी टोटल जो कल्टिवेटेड एरिया है वो 5.83 है, एंड उसमें से 3.35 मिलियन हेक्टेयर्स में ही पोटेंशियल इरिगेशन की जा सकती है, समझे। तो टोटल एरिया दिस इज़ 55 एंड देन कल्टिवेटेड एरिया इतना है, और उसमें से सिर्फ 3.35 मिलियन में ही इरिगेशन पोटेंशियल जनरेट किया जा सकता है। सो थ्रू बिग एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स 0.5 लाख हेक्टेयर्स आर इरिगेटेड, और जो बाकी बचता है 3.35 में से 3.35 में ही हम इरिगेशन पहुंचा सकते हैं। इसमें से जो 0.50 है मिलियन हेक्टेयर, यहाँ पर लार्ज और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो हैं वो पहुंचाए गए हैं या पहुंचाए जा रहे हैं, और बाकी जो बचता है 2.85 मिलियन हेक्टेयर, यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन के बेनिफिट्स जो हैं इरिगेशन के पहुंचाए जाएंगे, ये वो बोल रहा है। वाइल द रिमेनिंग 2.85 लाख हेक्टेयर्स, दिस इज नॉट मिलियन, दिस इज लाख, कैन बी इरीगेटेड थ्रू दी स्मॉल इरीगेशन स्कीम्स, एंड नवंबर 2022 तक टोटल इतना लाख इरीगेटेड एरिया डेवलप किया उसको है। उसमें से जो मेजर बड़ी जो इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स उसमें शाह नहर प्रोजेक्ट है कांगड़ा में, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 15,000 एकड़ ऑफ द लैंड इसमें वो बनाया गया है। अंटिल नवंबर 2022 द कमांड एरिया अंडर दिस शाह नहर वॉज 998 हेक्टेयर जो है ऑलरेडी डेवलप किया चुका था। अब ये तो थी बड़ी जो इरीगेशन की स्कीम है। छोटी स्कीम में बात करें तो बल वैली की लिफ्ट बैंक इरीगेशन स्कीम है, दैट इज़ 2780 हेक्टेयर ऑफ लैंड। सिद्धार्था कांगड़ा इरीगेशन प्रोजेक्ट है, दैट इज़ 3150। दैन शंकर बिलासपुर में है इरीगेशन, दिस इज़ 2350 हेक्टेयर्स। एंड फाइनली द फिना सिंह कल्टिवेटेड कमांड रीजन, दिस इज़ 4025 हेक्टेयर्स, राइट। वाइल नदौन एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, ये भी एक वहाँ पर प्रोजेक्ट है 2980 हेक्टेयर, यहाँ पर ये भी है। टोटल ये एरिया हम जो है मीडियम इरिगेशन के थ्रू जो डेवलप किया जाएगा। अब आते हैं माइनर इरिगेशन में 218 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23, इंपॉर्टेंट है। 218 करोड़ डायरेक्टली माइक्रो इरिगेशन को, इंपॉर्टेंट है, कहीं भी मीन्स में हम साइड कर सकते हैं, साथ ही साथ पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। टू प्रोवाइड फॉर द इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एरिया ऑफ 9000 हेक्टेयर्स, एंड एज ऑफ नवंबर 2022 30 करोड़ हैज़ बीन स्पेंट टू कवर द 22270.08 हेक्टेयर, ठीक है जी। टोटल 9000 हेक्टेयर हमें डेवलप करना है अंडर दी माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स, और उसके लिए फंड कितना है 218 करोड़। ओके, कमिंग बैक टू की हाइलाइट्स। टोटल एरिया जो हम जानते ही हैं 50 फॉरेस्ट के कवर की बात कर रहा है 15,443 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज़ 27.74% ऑफ द स्टेट, दिस इज एक्चुअल फॉरेस्ट। और टोटल जो डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट है दैट इज़ 37,943 किलोमीटर्स, अराउंड 68% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट, आउट ऑफ एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है सिर्फ इतनी है 3163 किलोमीटर स्क्वायर, मॉडरेटली डेंस दैट इज़ मैक्सिमम 7100 स्क्वायर किलोमीटर, और ओपन फॉरेस्ट है सेकंड नंबर पर 5180 स्क्वायर किलोमीटर, जो हम बात कर भी चुके हैं। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग से जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 6,000 करोड़, दैट अकाउंटेड फॉर 24% ऑफ द एग्रीकल्चर ग्रॉस जो इनकम है, वैल्यू एडिशन है फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर। और टोटल अगर GSVA स्टेट की देखनी हो तो दैट इज़ 3.28%, कहाँ से, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। नेक्स्ट, फॉर द ईयर 22-23 प्लांटेशन टारगेट जो है 50,000 हेक्टेयर का था, जिसमें से 12,000 हेक्टेयर ऑलमोस्ट हम अचीव कर चुके हैं, 12,131 हेक्टेयर, राइट। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द लिटरिंग ऑफ द प्लास्टिक्स आइटम्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम अंडर द हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995, ये एक्ट भी पूछ सकते हैं। 16.64 लाख जो हाउस होल्ड हैं आउट ऑफ 17.09 लाख, उनमें से फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है प्रोवाइड किया चुके हैं, विच इज़ 97.37%, दिसंबर 2022 तक की बात है वो, जो कि अगेंस्ट नेशनल एवरेज विच इज़ 56.50%। सो नेशनल एवरेज है 56% और हिमाचल में 97.37% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है प्रोवाइड किया चुके हैं अंडर जल जीवन मिशन, ये याद रखना है, जल जीवन मिशन। ऑलराइट, नेक्स्ट है जी, सो देयर इज़ ए फिजिकल गोल ऑफ 6,500 हेक्टेयर कल्चरेबल कमांड एरिया फॉर डिलीवरिंग द कमांड एरिया डेवलपमेंट ऑपरेशंस, ऑफ विच 2217 हेक्टेयर हैज़ बीन रीच्ड बाय नवंबर 2022 एट द कॉस्ट ऑफ 20 करोड़, राइट।
That is all for today. Thank you.